Now, keeping the spirits high and having that learning attitude, let us welcome our next speaker for the day, Mr. Sumit Chaudhary, CNMD of Third Millennium Business Resource Associates Private Limited. Sir would be sharing his opinions on building a career-ready personality. Mr. Chaudhary is international consultant trainer in the HRD space with 4 decades experience. He held senior management positions in DCM and Escorts and is CNMD of Third Millennium Business Resource Associates Private Limited. An alumnus of Department of Social Work, FMS Delhi and Faculty of Law, University of Delhi, holding diplomas in labor law and TNT, he has conducted many open in-house L&D programs for senior management professionals from major private sector companies, Maharatna PSUs, IS officers and DMA. He has helped large corporates through his interventions, published articles, presented papers in international conferences, and has been covered by prominent national dailies. We welcome you, sir. Over to you. Wonderful. Okay, first of all, a very, very good afternoon to all of you, my respected seniors, and definitely our wonderful new students. Let me first of all begin by complimenting you for 2 great decisions that you have already taken. One is choosing management as your career. Let me assure you, अगर आपने मैनेजमेंट का कोर्स अच्छे ढंग से कर लिया तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट? आपने देखा है इंजीनियरिंग के बाद भी लोग एमबीए करते हैं, एमबीबीएस के बाद भी एमबीए करते हैं. So that is the beauty of this program, that you are made so competent that you can handle a variety of different things. Whatever comes as a situation or problem in front of you, you are able to handle that. So that is the beauty of any management program. So that is the first great decision. My congratulations and compliments to you. The second great decision you have already taken is that you have joined a fantastic business school. I have been to Lloyd Business School a couple of times. And lately, there have been occasions when I have addressed online. And each time I find a level of vibrancy, the level of interactivity, the level of inputs. तो आपने बिल्कुल सही जगह ज्वाइन किया है, जहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन 2 सालों में, तो your entire career will be made, that I can assure you. So those are 2 things that I would compliment you for: joining the profession of management and joining wonderful B school like Lloyd Business School, right? So that is the first part. Now we move on to what I am expected to discuss with you. Maybe go to slide 11 straight away, because you have already introduced me. So in between slides not needed. 11 straight away, kindly bring us to 11. So what I was telling you is that अब आपने एक अच्छी जगह ज्वाइन कर लिया, बट एक बात आप कभी मत भूलिएगा, और वो मैंने स्लाइड में भी एक रखा हुआ है इसके लिए. नेक्स्ट प्लीज, 11. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्लाइड 11. नीचे नंबरिंग है, इससे आगे next one there will be a number. Yeah, thank you so much. 11 is what I need, not 12. Now it is 12. So 11, can you go back a slide? Yeah, that's it. One more back so that I can explain the concept of career ready personality. After that we'll come to, yeah, wonderful. Thank you so much. Thank you. Right. So what we will do in the next hour and maybe 20 minutes or so that are with us
we will talk about some experiences, some ideas that I have learned myself when I was a student and then my long career in industry. And then I will leave some questions with you. In between मैं कुछ questions उठाऊंगा, मैं answer नहीं दूंगा. I'm telling you in advance. The idea is not to take you through all the slides. The slides will be available to you. आप उन questions पे आप ध्यान देंगे. और technically कहा जाता है MBA और PGDM is a 2-year program. But let me caution you, आप इसको 2 साल मान के बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि early 2022 में आपकी प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगी. आपको अपने आप को तैयार करना है अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी जॉब्स को पाने के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक इट एज 1.5 years. और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन तक ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दैट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होने के लिए आप एक दिन की पढ़ाई से नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको डे 1 से इस पे ध्यान देना है. कुछ चीजें आपको 1 साल लग जाएगी डेवलप करने में. सीरियसली करेंगे तो हो जाएगा. तो अपना टारगेट जो है छोटे छोटे पॉकेट्स में रखिए कि पहले 3 महीने में मेरे को क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है. दैट इज हाउ यू बिल्ड पर्सनालिटी व्हिच इज गोइंग टू गेट यू द बेस्ट काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स. उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो करियर रेडी पर्सनालिटी का बेसिक मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेक्शन प्रोसेस को करती है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में आप उनको पसंद आते हैं या नहीं. आर यू पिक्ड अप इन द वेरी फर्स्ट गुड ऑर्गेनाइजेशन दैट यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. और ये मत सोचिए कि आपके यहाँ पे अगर 100-200 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप compete कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे भी स्कूल्स हैं, सारे इंडिया में फैले हुए हैं. और कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको जहां से अच्छे लोग उनके समझ में आएगी वो ले लेंगे. तो आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके कॉलेज के साथ के अदर स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, आपकी कंपटीशन और के साथ भी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. So when I say career ready, do you have certain things in you by which you will be able to impress the recruiters or hirers? वो आपका मेन फोकस रहना है. उसमें नॉलेज भी आ जाएगा, स्किल भी आ जाएगा, आपका एटीट्यूड भी आ जाएगा. We'll share some of those ideas. So what is the meaning of a career ready personality? कि भाई मैं बिल्कुल करियर के लिए रेडी हूं, जो भी कंपनी आएगी मुझे सिलेक्ट करेगी ऐसा मेरे को लगता है. दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी विद यू. या नेक्स्ट प्लीज. तो इसका नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा कि हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है. क्या क्या होंगी, मैंने 7 चैलेंज आपके सामने लिस्ट किया है. बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें डे 1 पे हर. वन मोर क्लिक प्लीज, वन मोर क्लिक. नेक्स्ट. Yeah, that's it. Thank you. So I am giving you a roadmap here. और इन 7 चीजों पे हम छोटा छोटा डिस्कशन आज करेंगे. और इसी सब में I will open up questions. वो क्वेश्चंस मेरे लिए नहीं है, वो क्वेश्चंस आपके लिए हैं और मैं आंसर भी नहीं दूंगा अभी. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू में किसको जाना है, ग्रुप डिस्कशन किसको फेस करना है. फैकल्टी कितनी ही कोशिश कर ले वो आपके लिए इंटरव्यू नहीं दे सकती. तो देयरफॉर अल्टीमेटली करना कराना सब आपको है. तो पॉइंट ये है कि जब तक आप सोचना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप अच्छे से उस आंसर नहीं दे पाओगे, नो वन कैन हेल्प यू. वी आर ऑल देयर टू हेल्प, देयर इज नो क्वेश्चन. बट करना कराना आपको है, ये मत भूलिएगा. ऐसा नहीं है आपने करियर अच्छा चूज कर लिया, अच्छा भी स्कूल चूज कर लिया, बस अब तो हमारा जिम्मा खत्म. सॉरी. तो ड्रीम्स बड़ी अच्छी बात है. I fondly remember the most popular president that we ever had, Dr. Kalam, जो कि हमेशा ड्रीम की बात करते थे. और his life is an inspiration, absolute inspiration. और बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे. अपने बचपन में वो
अखबार बेचा करते थे. He was selling newspapers to pay his school fee. But from there he became the president of India, which is the topmost position in our country. So क्या उनका ड्रीम और उनकी रियलिटीज क्या थी? जब वो इतने गरीब परिवार में थे तब वो प्रेसिडेंट होने का सपना नहीं देख रहे थे. दिस इज व्हाट पीपल मेक अ मिस्टेक, कि वो सीधे छलांग लगा के कहीं और पहुंच जाते. नो, आपकी जो ड्रीम है वो बड़ी ड्रीम रखिए बिल्कुल, पर उसको छोटे छोटे ड्रीम्स में डिवाइड करिए. तो कैसे होगा छोटे छोटे ड्रीम में? कि जब मैं जूनियर स्कूल में हूँ, प्राइमरी स्कूल में हूँ, तब मेरे को ये सोचना है कि मैं मिडिल स्कूल कैसे अच्छे से पहुंचूं. जब आप मिडिल स्कूल में हैं तब आप ये सोचेंगे कि अब मैं हाई स्कूल में अच्छे से कैसे पहुंचूं. जब आपने 12th अच्छे से कर लिया, फिर आपको ग्रेजुएशन का सोचना है कि कैसे करूं. दैट इज हाउ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर ड्रीम. बड़ा ड्रीम है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ बनूंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा, नो हार्म. बट खाली ड्रीम रखने से कुछ नहीं होने वाला. आपको रियलिटी के साथ कनेक्टेड रहना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज योर लिमिटेशंस. कमियां क्या है? हम सब में अच्छी बातें हैं, सब में बुरी बातें हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है. मैं जब देखता हूं अपनी तरफ तो मेरे को बहुत सारे नेगेटिव्स नजर आते हैं, आज भी इतने साल एक्सपीरियंस के बाद भी. बट आई हैव टू कॉन्स्टेंटली प्लान कि मैं उनको कैसे अपने पर्सनालिटी से हटाऊं. तो ये ड्रीम्स एंड रियलिटीज है, थोड़ा सा और बात करेंगे आगे. दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर ड्रीम है, मेरे रियलिटीज हैं, मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं, अब मुझे अपने को ग्रूमिंग करनी है. जो मैंने अभी अभी आपको एक हिंट दिया कि फैकल्टी, आपके डायरेक्टर, आपके चेयरपर्सन, ये लोग आपको आइडियाज दे सकते हैं, मैं आपको आइडियाज दे सकता हूं, पर करना तो आपको है. तो अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा. एक फिल्म के अंदर क्या होता है, डायरेक्टर बता ही सकता है ना कि ऐसे करिए एक्टिंग करना तो डायरेक्टर को पड़ेगा. So that is exactly the point you have to understand in the second point, कि आप करियर रेडी पर्सनालिटी क्या होता है समझें. उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको अगले 3-4 महीने में जवाब आ जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपको काम करना है उसको, राइट. आप टारगेट रखिए, बाय अक्टूबर नवंबर मेरे को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ढूंढ लिए, अब मुझे इस पे काम में लगना है, ताकि एक करीब 1 साल मिलेगा. एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2021 के एंड से आपके कैंपस रिक्रूटमेंट्स हो जाएगी, और उससे भी पहले समर ऑफ 2021 में आपकी समर प्लेसमेंट्स होंगी. उसके लिए भी आपको तैयार होना है कि वही एक मोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक्सपोजर मिलेगा, प्लस ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट यू डू. सो अपने को ग्रूम करना, सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट प्लीज, थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या है. तो थर्ड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, वो इसलिए क्योंकि हम अपने को कितना ही मान लें, वी आर वेरी गुड, बट प्लीज रिमेंबर, और मैं क्रिकेट के एग्जांपल बहुत लेता हूं क्योंकि आमतौर पे सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, और अभी तो फिर क्रिकेट काफी बातों में है क्योंकि धोनी ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है. तो धोनी भी, चाहे वो बेस्ट है, विराट कोहली चाहे बेस्ट है, पर क्या वो अपने आप जाके कैप्टन बन के बैठ जाएंगे? जब तक सिलेक्शन कमिटी उनकी सिलेक्शन नहीं करती है, they cannot go and take charge of the team. Please understand that. They are great, no doubt about that. But even are selected by someone for a role. तो आप कितना ही समझें कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, और ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बिल्कुल सिखाई नहीं जाती कि भाई आप समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छे बोलते हो, आप समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, पर आपकी असेसमेंट हमेशा somebody else will do. तो आपके सोचने से नहीं होगा. हमेशा ध्यान दीजिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं. आप उस चीज को क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ये समझ आने लगेगा कि भाई मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जो पर्सनालिटी है उसको इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकता हूं, अपने स्किल को इंप्रूव कर सकता हूं, अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव बना सकता हूं. बट somebody somewhere will be the person who will select me. तो उसकी नजरों में मैं काबिल
हूं या नहीं लगता हूं, दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस इश्यू, राइट? सो ऑलवेज फोकस ऑन अदर्स परसेप्शन अबाउट. सो व्हेन वी हैव वर्कशॉप्स में, उसमें इस पे आपको एक्सरसाइजेस कराता हूं कि आप कैसे दूसरों का परसेप्शन समझेंगे, क्या करेंगे. ऑब्वियसली ओरिएंटेशन के अंदर इतनी सारी चीजें, इतनी डिटेलिंग नहीं हो सकती, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं. नेक्स्ट प्लीज. अब आता है, एंड आई एम सो हैप्पी, मैं थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड गौरव जी का पार्ट सुन रहा था, तो वो जियो का एग्जाम्पल लेके बता रहे थे, कोविड का एग्जाम्पल बता रहे थे. दीज आर फैंटास्टिक आइडियाज और फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स. जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, इंटरनलाइजेशन ऑफ द डिसरप्टिव वर्ल्ड. अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में एक ये बहुत, यहां तो ऐसा होता है जी, कब से चला आ रहा है यही. आप एक हैं जो इसको बोल रहे हैं, भैया कोविड कब से चला आ रहा था? 6 महीने में, 6 भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं 3 महीने में सारी दुनिया को बदल के रख दिया. तो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस, पुराने मेडिसिन किसी काम नहीं आ रहे. यू हैव टू, एज यंगस्टर्स, अंडरस्टैंड दिस अर्ली दैट देयर इज डिसरप्शन हैपनिंग, राइट? हमारे बचपन में अगर किसी ने हमें कहा होता कि भाई आप जो है, ऐसा टाइम आएगा थोड़े दिनों में कि भाई आप कहीं भी दुनिया में खड़े हो जाएं और आपके हाथ में एक छोटी सी इक्विपमेंट होगी, इंस्ट्रूमेंट होगी, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कहीं भी है, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, और आप उससे आराम से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं वीडियो पे. हम कहते हैं ये पागल आदमी है, इसको हॉस्पिटल में होना चाहिए. बट टुडे दैट इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी. तो डिसरप्शन, आपको ये समझना है कि चेंज कई बार धीरे धीरे होता है तो हमें पता भी नहीं लगता. हम कैसे बड़े हो जाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. बट हमें डिसरप्शन तब फील होता है जब अचानक से एक बड़ा सा चेंज आ जाता है. क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस तरह के चेंज को एक्सेप्ट करने? तो इंटरनलाइजेशन मतलब, प्लीज make it a part of your personality to expect some uncertain things, some things that will happen tomorrow which you have not experienced. And आप तो बिल्कुल देख ही रहे हैं अपने सामने, पूरी दुनिया में किसी को आइडिया नहीं था ये कोविड क्या चीज है, कोरोना क्या चीज है. और आज कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है जिसको नहीं पता है. और कितने टाइम में हुआ आप ये भी सोचिए. आप सब इंटेलिजेंट हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि मेरे से जो भी यंगर है वो टेक्नोलॉजी में मेरे से आगे है और इंटेलिजेंस में मेरे से आगे है. तो यू विल अंडरस्टैंड दिस क्विकली. तो इसको अपने पर्सनालिटी का हिस्सा मानिए, हमें बदलते रहना पड़ेगा जैसे जैसे हालात आते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वाला है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं अपने में, तभी आप ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे. जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, और ये अभी अभी धोनी के एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाता है. सॉरी, सारे लोग जो धोनी को क्लोजली जानते हैं और हम लोग जो दूर से देखते रहे हैं क्रिकेट, क्या बोलते हैं, इतना ठंडा दिमाग, प्रॉब्लम कुछ भी हो, ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, घबराता नहीं है, एटलीस्ट बाहर किसी को दिखता नहीं है कि परेशान है, राइट? So therefore, and he takes decisions which mostly resulted in good results. 100% success किसी को भी नहीं मिल सकता. But क्या आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं? मैं इसके एग्जांपल्स आपको वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े लीडर्स के थ्रू आई विल शेयर दैट. वी विल कम टू दैट. नेक्स्ट प्लीज. तो क्या सिर्फ ये सब जानने से ही हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. ये भी मैं हिंट आपको कर चुका हूं. सिर्फ नॉलेज इन सब चीजों की, हाँ मेरे ड्रीम्स होने चाहिए, रियलिटी होने चाहिए, मुझे ये बनना चाहिए, मुझे वो बनना चाहिए, मुझे डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड समझना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि और लोग मुझे असेसमेंट करेंगे, मैं पॉजिटिव भी हूं, पर उसकी तैयारी, दैट इज द वे अहेड. क्या क्या करना पड़ेगा मुझे और उसको एक्चुअली करना, खाली सोचने से नहीं हो जाएगा.
उस पे आएंगे और उससे हमें पता लगेगा कि हमारा आगे का रास्ता कैसे बनता है, कैसे बनेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। लास्ट पार्ट, अगर हमें आगे बढ़ना है, जो पॉइंट 6 में मैंने कवर किया, तो आपका जो माइंड सेट है, जो आपके दिमाग की बनावट है, उसको कैसे तैयारी करनी है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिस दिन से मैं पैदा हुआ, शायद पैदा होने से पहले से भी, हर इंसान की बात कर रहा हूं, सिर्फ अपना नहीं, और जिस दिन तक मैं मरूंगा नहीं, उस दिन तक मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। दुनिया में करोड़ों 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 ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, खासकर मेरे फील्ड से जो रिलेटेड चीजें हैं उनको मैं कैसे समझूं, कैसे करूं। इतनी नई सोच आ रही है, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, बट क्या मैं ऐसे प्रोसेसेस को समझ सकता हूं, लर्न कर सकता हूं, जिसके थ्रू मैं बेस्ट परफॉर्मेंस अपना हमेशा दे सकूं। क्या चीज मुझे सीखनी चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार रहिए। कल तक जो सही था, कल तक जो बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता था, हो सकता है डिसरप्शन की वजह से आज डिफरेंट हो जाए, राइट। बाद में भी कई एग्जांपल्स है, बट पिकली वन एग्जांपल, कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि भाई ये 5 स्टार होटल चेन में इनकी प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बट सम कंपनी लाइक एयरबीएनबी और ओयो विल कम, जिनके पास एक भी होटल नहीं है, बट दे विल बी द बिगेस्ट बिजनेस इन होटल इंडस्ट्री। तो सारे फिर हैरान हो जाते हैं। ये होता है डिस्ट्रप्शन। 10-15 साल पहले कोई कहता कि भाई लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होगी वो उबर और ओला जैसी कंपनीज होंगी, जिनके पास एक भी गाड़ी अपनी नहीं है, तो भी लोग कहते हैं बेवकूफ आदमी, पर आज वो सच है। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको अपने चेंज करते रहना पड़ेगा। और इस ब्रिलियंट थॉट दिया है ऑल्विन टॉफलर ने, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, जिसने ये बोला है कि द इलिटरेट आप सब जानते हैं, जो अनपढ़ है, कौन होगा इन द 21st सेंचुरी जिसमें हम हैं। द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी अ पर्सन, नॉट बी बोला उसने, विल नॉट बी अ पर्सन हु डज नॉट रीड और राइट। लिखना पढ़ना जिसको नहीं आता वो इलिटरेट नहीं है। तो कौन है फिर इलिटरेट? अ पर्सन हु कैनॉट लर्न। कोई भी चीज सीखना है, हर चीज लिख के पढ़ के भी नहीं सीखना है, एक्सपीरियंस से आप देख के भी सीख सकते हैं। सीखने के कई तरीके। सो द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल बी अ पर्सन हु कैनॉट लर्न, सीख नहीं सकता। अनलर्न, सीख लिया तो ये नहीं कि सारी जिंदगी वही सीख चलेगी, हमें बदलते रहना पड़ेगा। एंड रीलर्न, तो पहले लर्न करिए, जरूरत पड़ी तो उसको अनलर्न कर दीजिए, भूल जाइए कि ये भी कोई तरीका था, और रीलर्न करिए नया तरीका क्या है। वही लोग सक्सेसफुल होंगे। और उसके लिए जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली फिजिकल एंड मेंटल ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये अगर 7 स्टेप्स आप लेंगे अपनी करियर में, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, राइट। So that is the introduction, and gradually हम इसके थोड़ी थोड़ी चीजें हल्की हल्की डिस्कस करते हुए चलेंगे। Next please. I think it has gone back by 1. Next please. Yeah, next slide 13. Yeah. तो पहला पॉइंट जो था मेरा वो स्लाइड 13 में आएगा, ड्रीम्स एंड रियलिटीज। और उसके लिए you can go to the next, there is no content here, just diagram के ड्रीम्स बड़ा अच्छा लगता है। सॉरी। सो ड्रीम्स जो हैं, किस ड्रीम है हमारी, हम आज कैंपस में हैं और कोविड की वजह से हम शायद घर पे हैं, पर फिर भी हम कैंपस से जुड़े हुए हैं। तो कैंपस 2 हमारा ड्रीम क्या है, हमें कॉर्पोरेट में जाना है, वेरी सिंपल। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। बट सिर्फ ये सोचने से या सिर्फ सपना लेने से, नेक्स्ट प्लीज,
नहीं हो जाएगा, हमें रियलिटीज पे भी ध्यान देना है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मेरी आज की रियलिटी क्या है, उस रियलिटी लेके मुझे आगे चलना है। नेक्स्ट प्लीज। और वो रियलिटी आज की आ गई आपकी कि आप एक अच्छे एमबीए प्रोग्राम में आ चुके हैं, बट लाल वाला हिस्सा पढ़िए, नॉट द एंड ऑफ योर एफर्ट। लेट मी रिमाइंड यू रिपीटेडली that it is only the beginning. Getting into Lloyd Business School is only the beginning. You have to continuously work. Just like getting into the Indian team by Dhoni or Virat Kohli was the beginning. They are recognized as top performers because they have continued to improve. That should be the spirit. मैं जो भी आज हूं, मैं इससे थोड़ा सा अच्छा हूं या नहीं, और ये प्रैक्टिस मैंने बहुत सालों से करता आया हूं। पहले मैं लिख के करता था, पर अब ऐसी आदत पड़ गई है कि मुझे लिखना नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे, जस्ट बिफोर स्लीपिंग, मैं 5-10 मिनट जरूर अपने लगाता हूं और सोचता हूं कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या मुझे मेरे से गलतियां हुई, और अपने से क्वेश्चन पूछता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यही काम करने को मिले, हाउ विल आई डू इट बेटर। दूसरों से तो तब कंपीट करेंगे जब पहले अपने को तो इंप्रूव करिए। सो मैं कल जैसा था, जितना कॉम्पिटेंट था, आज मैं उससे 2-4 मिलीमीटर एटलीस्ट आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो गेटिंग इनटू द एमबीए प्रोग्राम इज अ बिगिनिंग, नॉट द एंड। नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ जो मैंने कहे थे आपको कि मैं कुछ सवाल उठाऊंगा विच यू हैव टू थिंक। मैं कोई जवाब पूरी तरह से नहीं दूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, पर सोचने का काम आपका है। मैं आपके लिए नहीं सोच सकता, मैं आइडिया दे सकता। तो आपको सोचना शुरू करना है कि भाई मैं किस लिए आया हूं यहाँ, मैं किस तरह का सक्सेस चाहता हूं अपने लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी। हर बंदा कह देता है सक्सेसफुल होना चाहता हूं मैं। अरे भैया, सक्सेसफुल का मतलब क्या है? वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हो, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्मगलर बनना चाहते हो, क्या चाहते हो? या वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, राइट? आपको क्या लगता है कि आपके को कब लगेगा कि आप सक्सेसफुल हुए? फिर पूछिए मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाइए। क्योंकि काम आप तभी शुरू करेंगे जब आपका आंसर यस होगा कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए। जिसको सक्सेस चाहिए ही नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। There's a famous story for kids, Alice in Wonderland. So there is a sentence, if you don't want to go anywhere, any road will lead you there. अगर आपको कोई एम ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, कहाँ पहुंचना है कोई पता नहीं है, तो आप कोई भी रास्ता ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बट वो आपको सक्सेस नहीं देगा क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं। तो सक्सेस की पहले डिफाइन करिए कि मैं ये चाहता हूं करना, और फिर उस पर कैसे काम करना है उसका रास्ता बनाइए। कभी फिर का मैं आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान कैसे बनाते हैं वो समझाऊंगा। उस पर आपको काम करना है, टारगेट्स रखनी है और अपने को इंप्रूव करना है। और विजुअलाइज करना सीखिए। अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो मुझे क्या मिलने वाला है 2 साल के बाद। जब मुझे पहली जॉब अच्छी कंपनी में मिलेगी तो मेरा करियर कैसे आगे जाएगा। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस। विजुअलाइज बहुत पावरफुल टेक्निक है, राइट? सोचिए, अपना पिक्चर बनाइए माइंड में कि अगर मैं टॉपर टाइप रहा तो बेस्ट कंपनी मुझे ले जाएगी, और अगर मैं कई पेपर्स में लुढ़क गया, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप ऐसा करोगे, बट जस्ट टू गिव ए कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल, तो आपको हर जगह से रिजेक्शन मिलेगी। तो क्या मैं ऐसा चाहता हूं? तो वो आप अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है। नेक्स्ट प्लीज। अब कई लोग आज के जमाने में, स्लाइड 18 प्लीज। सो सक्सेस के बारे में काफी लोग कहते हैं भाई स्मार्ट वर्किंग चाहिए, स्मार्ट वर्किंग चाहिए। लेट मी पुट इन अ वर्ड ऑफ कॉशन। स्मार्ट वर्किंग तब काम करता है जब आपने हार्ड वर्क कर लिया है। सिर्फ स्मार्ट वर्किंग से आप पकड़े जाओगे।
जल्दी पकड़े जाओगे और फिर आपकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। स्मार्ट वर्क तब होता है कि मैंने हार्ड वर्क कर लिया, मुझे 10 चीजें आती हैं, अब मुझे पता है कि मुझे इस फील्ड में ज्यादा जाना है। ये हवा मत रहिए, मुझे तो मार्केटिंग करनी है, मुझे एचआर से क्या मतलब, मुझे आईटी से क्या मतलब, ये वो। प्लीज, एवरी सब्जेक्ट विल टीच यू समथिंग स्पेशल। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज से पढ़िए, और उसके बाद अगर एमबीबीएस ही किसी डॉक्टर ने नहीं किया, एमबीबीएस में ही फेल हो रहे हैं, तो क्या वो सर्जन बनेगा, और क्या वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनेगा, या ऑन्कोलॉजिस्ट बनेगा, या न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा? सो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट, एनी लर्निंग। कौन सी लर्निंग कब काम आ जाएगी आपको पता नहीं। सो प्लीज डू द हार्ड वर्क, and then automatically your doors for smart opportunities will open up. Just to give you an example, आप देखेंगे, आप सिंपल सी कोई बैंक का लोन लेना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो मान लीजिए वो 50 लाख का घर है, और बैंक का स्कीम है जो आप फायदा उठा सकते हैं। दे विल ऑलवेज से पहले 20% आप जमा करिए, तो आप 50 लाख का 10 लाख रुपए आप देंगे, तब हम आपको 40 लाख का लोन देंगे। तो अगर आपने हार्डवर्क करके वो 10 लाख भी नहीं इकट्ठा किया, तो वो 40 लाख का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी नहीं मिलेगा। हमेशा थिंकिंग को लॉजिकल रखिए, और वो आगे पॉइंट है उसमें भी हम आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो सक्सेस फॉर्मूला जो है, ये आपको क्लियरली समझना है कि सक्सेस के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक है अपॉर्चुनिटी, और दूसरा है, वन मोर क्लिक प्लीज, एंड प्रिपरेशन। 2 पार्ट्स में होता है, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन। वन मोर क्लिक प्लीज, या वन मोर प्रिपरेशन पार्ट। थैंक यू। सक्सेस होने के लिए 2 पार्ट्स का इकट्ठा होना जरूरी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। शायद आपने हमारे आर्म फोर्सेस की बहुत तारीफ सुनी है, और आपने शायद कारगिल वॉर के बारे में भी सुना है। अभी अभी उसकी जो है 21 साल पूरे हुए, और उससे पहले जो मेजर वॉर हुई थी वो 1971 में हुई थी, और कारगिल वॉर 1999 में हुई थी। नाउ थिंक, 28 साल तक कोई मेजर वॉर हमारा हुआ नहीं, बट आर यू थिंकिंग दैट आवर आर्म फोर्सेस वर नॉट प्रिपेयर्ड? क्या 28 साल तक वो तैयारी नहीं कर रहे थे? उनको मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं आई अपनी तैयारी दिखाने की, अपनी ब्रेवनेस दिखाने की। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट। आर्म फोर्सेस इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मेरा इनफाइनाइट रेस्पेक्ट है। आई रेस्पेक्ट देम इनफाइनाइट, बिकॉज दे आर ऑल। हम तो आज बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, डिसरप्शन की। उनका तो हमेशा ही डिसरप्शन है। कोई भी एनिमी कभी आपको बताएगा कि वो कब अटैक करेगा, किस तरह से करेगा, कहां से करेगा, जैसे कोविड ने किया, तो उनको कभी भी कोई बता के नहीं करेगा। तो कैसे वो तैयारी करते हैं? दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। उनको कोई अपॉर्चुनिटी 28 साल तक नहीं आई, बट दैट डज नॉट मीन कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। बैंक लोन का स्कीम कब निकलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी आपको पता नहीं। बट क्या आप तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए? आप तैयार हैं जहां से भी कैसे भी एनिमी अटैक करे, हमारे पास पूरी तैयारी। तो यही होगा, अगर आप अपनी तैयारी पूरी करते रहेंगे तो आप एक सिंपल चीज है, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए होंगे फ्रॉम योर स्कूल एंड कॉलेज, आप देखेंगे नॉर्मल एक्सपीरियंस आपका क्या है। जिस सब्जेक्ट में आपने अच्छी पढ़ाई करी, उस सब्जेक्ट में नॉर्मली आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी आपको आता है उसका आंसर। और जिस सब्जेक्ट में आपने तैयारी नहीं करी, वॉट एवर बी द रीजन, उसमें आपके यूजुअली अच्छे नहीं है। बट कभी कभी जो लक एलिमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी है, बाई चांस आपने अच्छी तैयारी तो नहीं करी, पर पेपर ऐसा आ गया कि जो जो आपको आता था वही पूछ लिया गया, तो आपके अच्छे हो गए। तो बिना प्रिपरेशन, उतना अच्छा प्रिपरेशन के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और कभी कभी ठीक इसका उल्टा भी होता है, आपने बहुत सारी अच्छी तैयारी करी पर ऐसे सवाल आ गए, या उस टाइम पे आपका दिमाग चला नहीं, उसके पॉइंट्स याद नहीं आए। तो ये जो है लक एलिमेंट है, पर उस पर सोचो नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
राइट? सो जैसे गीता का श्लोक, बहुत पॉपुलर श्लोक है, जो बताया जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सारे लोग आपको बोलेंगे कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बट लकीली हमारे जो पूर्वज थे, इतने अच्छे उनका थॉट प्रोसेस था, उन्होंने हर चीज में इंटरप्रिटेशन का स्कोप छोड़ा है। एंशिएंट विजडम इज फैंटास्टिक। तो मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं कि भाई मैं काम करूंगा, मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी इंसान हूं, मैं तो कोई साधु संत हूं नहीं कि मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो फल के लिए काम कर रहा हूं। पर मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, बट फल मेरे हाथ में नहीं है। तो why am I wasting time on that? To give you a simple example, those of you who follow cricket, पिछले साल के वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था? अगर आप सोचें, एक अंपायर की गलत डिसीजन, जहां 6 रन दे दिए, 5 देना चाहिए था इंग्लैंड को, उस वजह से टाई हुआ। टाई होने के बाद फिर सुपर ओवर हुआ और वो सारी बातें आई। अगर वही डिसीजन सही होता तो न्यूजीलैंड जीत गई होती, कोई एक्स्ट्रा ओवर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो यानी कि लक एलिमेंट उनके साथ नहीं था, इंग्लैंड के साथ था। तो मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं कि जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं, आपको बॉलर कैसा बॉलिंग करेगा उस पर ध्यान देना है, या आप अंपायर की सोचते रहोगे अगर उसने आउट दे दिया तो क्या होगा? यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में, आपका एफर्ट करना आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट क्या होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। चाहे आप अच्छा रिजल्ट उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, बट अगर उसी पे आप टाइम जाया कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन? यू विल लूज योर फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। तो मैं इसको इन योर कंट्रोल एंड आउटसाइड योर कंट्रोल पे डिवाइड करता हूं। तो सक्सेस तब होएगी जब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो वाला हिस्सा आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। लुक एट द अदर पार्ट वेयर प्रिपरेशन। आप अगर प्रिपेयर अच्छा करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को भुना पाओगे। How is it that Virat Kohli can face most of the bowlers and other batsmen are not able to? Because उसकी प्रिपरेशन ज्यादा होती है। हर चीज को, वो छोटे से छोटे फ्लॉ को भी ठीक करता है, राइट? और मैं कई एग्जांपल दे सकता हूं, बट टाइम इज नॉट एग्जैक्टली आवर फ्रेंड, सो वी विल मूव ऑन। नेक्स्ट प्लीज। सक्सेस का एक और हिस्सा आपको समझना है। वन मोर क्लिक प्लीज। या कि आपको ऐसा नहीं है कि कई लोगों का सक्सेस क्यों नहीं होता, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, पर वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं और जरा जरा सी नेगेटिव्स पे घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपको कोई भी चॉइस आप करते हैं जिंदगी का, सोच समझ के करिए, दिमाग लगा के करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, इंडिया में ये कल्चर है दिल लगा के काम करना, दिल लगा के काम करना। मैं कहता हूं दिल बाद में, दिमाग लगा के काम करोगे तो दिल भी सही जगह लगेगा। ऑलवेज दिमाग फर्स्ट फॉर मी। प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करो वो अलग बात है। और वहां भी मैं कहूंगा, मेरा सजेशन होगा कि वहां भी दिमाग पहले लगाओ, नहीं तो गलत लोगों से दोस्ती कर लोगे और डूबोगे। सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी चीज आप लेते हैं उस पर सोच समझ के करिए। अपने रियलिटी को देखिए, अपने ड्रीम्स को देखिए, उनसे लिंक बना करके आप अपना काम करिए। और जो काम आप हाथ में लेते हैं वो एक आध फेलियर होने से छोड़ मत दीजिए। इसी से पॉजिटिविटी लिंक करूंगा मैं वर्ल्ड के, मैंने बोला है आपको, 2 ग्रेटेस्ट लीडर्स के साथ। सो यू हैव टू स्टिक टू इट। आपने आज फिजिक्स पढ़ ली, कल बोर हो गए, इकोनॉमिक्स में चले गए, परसों आपने इकोनॉमिक्स छोड़ के नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेडिकल में एडमिशन के पढ़ने लग गए। सॉरी बॉस, उससे आपका करियर कभी भी स्मूथ ट्रैक पे नहीं रहेगा। आप जल्दी बोर होने वाले, आप इतने ही क्रिएटिव हैं, पर जल्दी बोर होने वाला चक्कर जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। आपको स्टिक करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल गलत लोग बोलते हैं कि जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो सब सारे क्रिएटिव पीपल होते हैं। मुझे तो बिल्कुल उल्टा लगता है कि जो लोग स्टिक कर सकते हैं किसी चीज पे, दे आर मच मोर सक्सेसफुल। और मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। क्लासिक एग्जाम्पल, गुलजार साहब का नाम आपने सबने सुना होगा, आपको पता ही है कितने अच्छा वो लिखते हैं, है ना? तो किसी
इंटरव्यूअर ने गुलजार साहब को कह दिया कि अरे सर आप तो जो कुछ लिख देते हैं इतना कमाल हो जाता है, यू राइट सो ब्यूटिफुली, एवरीथिंग दैट यू राइट इज फैंटास्टिक। अब गुलजार साहब का जवाब सुनिए। वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी हूं, मैं रोज सुबह 10 बजे अपनी राइटिंग डेस्क पे बैठ जाता हूं और मैं शाम के 5 बजे तक मैं लिखता रहता हूं, यानी कि 7 घंटे। आप खुद लगाइए, अगर गुलजार साहब जैसा राइटर 7 घंटे रोज के लिखता हो तो कम से कम 10 पेज तो लिख ही लेते होंगे। तो अगर 10 पेज गुलजार साहब रोज लिख लेते हैं तो साल के 365 दिन के बाद उनकी एक 3650 पेज की किताब बन जाएगी। तो क्या एक साल में गुलजार साहब के लिखे हुए 3650 पेज सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं? कोई एक शेर कहीं से, कोई एक डायलॉग कहीं से वो सुपरहिट हो जाता है और उसी से नाम होता है। हम लोग उस चीज को नहीं देखते। अनफॉर्चुनेट थिंग ये है, क्योंकि हमारे को अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सिखाते ही नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी को देखते हो, उसके पीछे क्या हार्डवर्क है वो आप नहीं देखते। हमेशा उसके पीछे हार्डवर्क देखिए। तेंदुलकर ने अगर 34,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिए तो उसके पीछे हार्डवर्क सोचिए कि कितना प्रैक्टिस उसने किया होगा, कितने बॉल्स उसने फेस किए होंगे, कितनी बार उसने पैड अप करके स्टैंस लिया होगा। अगर 3 बॉल में भी 1 रन बना है, बिकॉज 1989 में अब T20 क्रिकेट तो था ही नहीं और इतने स्पीड पे रन्स भी नहीं बनते थे, तो तब से अगर आप पूरा रिकॉर्ड उसका इंटरनेशनल करियर देखें, 3 बॉल पे भी 1 रन बनाया हो तो 1 लाख से ऊपर इंटरनेशनल डिलीवरीज ही वुड हैव फेस्ड। दैट मींस 1 लाख टाइम्स ही वुड हैव पैडेड अप एंड टेकन स्टांस, ध्यान दिया है ऑन द बॉलर्स हैंड। 1 लाख बारी, दिस इज ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट। उस लेवल पे पहुंचने के लिए स्कूल क्रिकेट, और आप में से जो क्रिकेट के कीड़े होंगे मेरी तरह, वो जानते होंगे कि कामली के साथ 664 रन की पार्टनरशिप कर दी थी उन्होंने स्कूल में। तो ये सब आप ऐड करेंगे शायद करोड़ों बॉल्स, और जिस दिन वो फर्स्ट बॉल भी कभी गलती से आउट भी होते हैं तो सुबह शायद 50-100 बॉल्स तो नेट प्रैक्टिस में खेल के आए हैं। तो ये सारा ऐड करो तो एफर्ट वो है। जो बेस्ट एक्टर भी माना जाता है उसके भी फ्लॉप फिल्म्स होते हैं, उसको भी रिहर्सल करना पड़ता है। एक ही सीन जो आपको बहुत पसंद आता है, आपने कभी सोचा कि उसको 40 बार किया गया और उसमें से बेस्ट को पिकअप किया गया? सो प्लीज ट्राई टू हैव दैट डेप्थ टू एनालाइज थिंग्स। ये इमोशनल ड्रामा में ओ इसके तो मजे हैं, इसको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये है वो है सक्सेस। हर सक्सेस के पीछे हार्डवर्क है, उसको मत भूलिए। तो आपको टिक के काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आए जिनकी तेंदुलकर से भी ज्यादा टैलेंट थी, बट नहीं टिक पाए बिकॉज हार्डवर्क नहीं था उनमें। कामली इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। इसी तरह से गावस्कर के जमाने में विश्वनाथ, आई रेट हिम एज अ मच बेटर बैट्समैन देन गावस्कर, बट रिकॉर्ड्स बने बिकॉज कंसिस्टेंसी और लगे रहते थे गावस्कर, डिसिप्लिन। राइट, नेक्स्ट प्लीज। सक्सेस एंड फेलियर में दोनों पे ध्यान दीजिए, इज माय मैसेज। सिर्फ सक्सेस देखते रहेंगे तो आपको हर चीज आसान लगेगा। ये भी तो गया था, इसको भी तो कोई गरीब आदमी था, वो तो प्लेटफॉर्म पे सोया पर कितना बिग बी बन गया या कुछ हो गया। इस तरह की कहानियां आपको बहुत मिलेंगी, पर आप ये कभी नहीं सोचते कि भाई बिग बी बनने वहां पे तो करोड़ों लोग आए थे, सारे की बिग बी। बाय द वे, बिग बी इज माय कॉलेज सीनियर, many years my senior from my graduation college। तो क्यों और लोग क्यों नहीं बने? और उनके कॉम्पिटिटर्स में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। धर्मेंद्र को ले लीजिए, राजेश खन्ना को ले लीजिए, संजीव कुमार को ले लीजिए, जितेंद्र को ले लीजिए, शशि कपूर ले लीजिए। आई कैन गिव यू ऑल कॉम्पिटिटर्स ऑफ अमिताभ बच्चन। तो खाली सक्सेस मत देखिए, आप फेलियर क्यों हुई किसी की या अपनी, उसको भी स्टडी करिए और उसमें से आपको काफी कुछ पता लगेगा कि क्या मुझे करना है, वो सक्सेस से पता लगेगा। क्या मुझे नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज you will come to know from failures. Next please. सक्सेस के लिए
आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फोकस बहुत जरूरी है। अब आपने एमबीए में पीजीडीएम में एडमिशन ले लिया है, तो आपका फोकस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। तो फोकस, और ये अर्जुन का फोकस सबको पता है, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखती थी या मच्छी की आंख ही दिखती थी, जबकि बाकी सब कोई पेड़ देख रहा है, कोई टहनी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। एंड दैट इज व्हाई अर्जुन वाज अर्जुन। एंड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें कि एक बारी दुर्योधन ने पूछा द्रोण को कि आप तो हम सबके गुरु हैं, फिर आपका ये अर्जुन फेवरेट शिष्य क्यों है? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने कि भाई गुरु तो मैं सबका हूं, ठीक है, पर मुश्किल ये है कि तुम सब लोग मैं जो कुछ सिखाता हूं उसी को अंतिम शिक्षा मान के और बैठ जाते हो, वेयरएज अर्जुन मेरी शिक्षा को प्राइमरी मान के मेरे से भी आगे निकल गया। दैट इज व्हाट शुड बी द स्पिरिट। तो आपका फोकस है कि हर फैकल्टी से जो आपसे सीनियर है बहुत कुछ आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको बेस बनाइए, स्ट्रॉन्ग बेस बना के उससे भी आगे मैं कैसे अपना नॉलेज, अपना स्किल और अपना एटीट्यूड ला सकूं, वो मैं एंड में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। दूसरा है जो हमारा आज का मेन थीम है, करियर रेडी पर्सनालिटी। इसमें हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, इसमें मैं सवाल उठाऊंगा मोस्टली। ग्रूमिंग फॉर अ करियर रेडी पर्सनालिटी, आप अपने आप को कैसे ग्रूम करेंगे करियर रेडी के लिए। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्ट्रेट अवे। तो पहली चीज है कि अलग अलग लोग आपको, वन मोर प्लीज, कॉर्पोरेट रेडी करियर के बारे में आप सोचिए। आप बहुत लोगों का बहुत दिमाग में पर्सनालिटी के अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है भाई सूट बूट पहन लिया, बड़ा अच्छा स्मार्ट लग रहा है तो पर्सनालिटी अच्छी है। वेयरएज अगर आप पर्सनालिटी वर्ड कहां से आई उसकी डेफिनेशन में जाओगे तो ये ग्रीक थिएटर में पर्सोना वाज अ मुखौटा, जो मास्क पहन के जो एक्टिंग करते थे उसको पर्सनालिटी वर्ड वहां से आया। तो वो रियल पर्सनालिटी आपकी है ही नहीं। तो आपको कॉर्पोरेट करियर में इसका क्या रियल मीनिंग है वो आपको सोचना है। मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, ये तो सोचने की बात है। नेक्स्ट प्लीज। आपको सोचना है और इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर मुझे अच्छा करियर बनाना है कॉर्पोरेट, तो पहली चीज तो मुझे कॉर्पोरेट में एंट्री चाहिए ना। तो अगर मैं एक्सीलेंस ढूंढ रहा हूं तो पहले एंट्री मिलेगी तभी तो एक्सीलेंस होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन पाया तो मैं अच्छा काम एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे कर सकता? तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये थोड़ा आपको मैं बाउंसर देने वाला हूं, आंसर नहीं दूंगा या हल्का सा दूंगा, बाकी आपको सोचना। तो जिनके पास बाई चांस आपके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पहले वर्क एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, और ज्यादातर होंगे जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोनों के लिए सवाल है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करोगे। कोई जवाब है इसका आपके पास? क्योंकि टाइम की कमी है थोड़ी सी, हमारे पास 32-33 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं दे देता हूं जल्दी। नहीं है आपके पास कोई आंसर नहीं है इसका। आज की डेट में आपको नहीं पता विच ऑर्गेनाइजेशन यू विल जॉइन, राइट? देन नेक्स्ट प्लीज। सेकेंड, आपको काम क्या दिया जाएगा जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी की सिलेक्शन हो गई, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली। नेक्स्ट प्लीज। तो आपको क्या काम करने को मिलेगा? What work will be assigned to you? You have, जब कंपनी ही नहीं पता तो काम कैसे पता लगेगा कि क्या करने को मिलेगा? तो नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन और भी कंफ्यूजिंग है, जान के कर रहा हूं कंफ्यूज आपको। आपका बॉस कौन होगा? आपके कलीग्स कौन होंगे? आपके जूनियर कौन होंगे? So now you will say this man Sumit Chaudhary is a madman when I don't know which organization I will join, when I don't know what work will be given to me, how can I know my boss, colleagues and juniors? Isn't this a stupid question? There is a purpose, और वही पर्पस मैं अभी दूंगा आपको। नेक्स्ट प्लीज। आपके बॉस की, आपके कलीग्स के, आपके जूनियर्स की क्या पर्सनालिटी होगी?
कैसे पता होगा भाई? We don't know which is the right answer as of now. But why am I doing this to you? जब मुझे पता है कि आपको नहीं पता, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूं? सोचिए। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कभी भी आप दूसरों के हेल्प के बिना, दूसरे में बॉस भी आ जाएगा, कलीग्स भी आ जाएंगे, जूनियर्स भी आ जाएंगे, उनके हेल्प के बिना कभी भी आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। कोई बैट्समैन अगर बाकी सारे 10 आउट हो जाते हैं, तो कोई बैट्समैन कितना ही अच्छा हो और 99 पे भी खेल रहा हो, क्या वो सेंचुरी बना सकता है? एंड प्लीज रिमेंबर, कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट टीम वर्क। कोई भी सिंगल पर्सन खड़े होके ये नहीं कह सकता मैंने कार बनाई, मैंने लैपटॉप बना दिया। ऑल products and services are a combination of the efforts of teams. कोई छोटी टीम है, कोई बड़ी टीम है, etc. राइट? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे करियर के सक्सेस के लिए मुझे दूसरों का सपोर्ट जरूर चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तैयारी को कैसे करें हमारे को? नेक्स्ट प्लीज। यंग प्रोफेशनल हैं हम, हमारे को क्या क्या करना है? व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? माइंडसेट मतलब आपके दिमाग की जो बनावट है, योर माइंड, हाउ शुड इट वर्क, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट प्लीज। आपको 3 काम करने हैं जो अगले स्लाइड में हैं, ABC। तीनों कर दीजिए एक साथ, ABC। आपको पहला काम करना है कि अभी तक आपका सारा फोकस जो है बुक्स, थियरी एंड एकेडमिक्स में रहा है, आपको उससे निकल करके आपको तैयारी किसके लिए करनी है? वर्क, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, राइट? और इसके लिए मैं क्या कहता हूं? आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी और अ गेस्ट फैकल्टी इन मेनी बी स्कूल्स इंक्लूडिंग माई ओन FMS दिल्ली। तो कोई भी अगर गलती से मेरे को पूछ लेता है कि what is important topic and what are the important questions, मेरा स्टैंडर्ड आंसर होता है whatever you do not know till now is important। करियर में आने के बाद क्या आपको कोई भी बॉस कभी भी ये पूछ के आपको काम देगा कि ये आपके सिलेबस में था कि नहीं, ये आपको पढ़ाया गया है कि नहीं? उस काम से मतलब है। तो सिलेबस जो होता है दैट इज द मिनिमम, कि इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको MBA की डिग्री मिलनी है तो। और ये बिल्कुल इससे भूल जाइए, ये जो ग्रेजुएशन तक आप लोग करते रहते हो ना, पिछली बार ये आ चुका है इसलिए इस बार नहीं आएगा, तो बहुत ये सब सोच के आपको काम देगा क्या? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मुझे क्या पता व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बॉस क्या काम देगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब हम ज्यादा तैयारी रखेंगे तो ज्यादातर काम हम कर लेंगे। दैट शुड बी द अप्रोच। सेकेंड, प्रिपरेशन एंड एंटीसिपेशन। एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है, क्या आएगा, कैसे करना है, कैसे लिखना है, उस माइंडसेट से निकल के आपको वर्ल्ड ऑफ एक्शन एंड एप्लीकेशन, ये जो थ्योरी में आप लोग, काफी लोग आप में से BCom होंगे या 12th में कॉमर्स में पढ़े होंगे, हर चीज की आपको रटी हुई डेफिनेशन तैयार है। प्लानिंग ये होता है, ऑर्गेनाइजिंग ये होता है। अगर मैं एक छोटा सा प्लान बनाने को दे दूं आपको, तो आप नहीं शायद कर पाएंगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको वो अप्रोच ही नहीं दी गई है, माइंडसेट ही नहीं तैयार की गई है, राइट? मेट्रो में आप आते हो, मैं कई बार स्टूडेंट्स को इस तरह की चीजें पूछता हूँ, भाई लेट कैसे हो गए सर? वो मेट्रो कैसे आते हो? मेट्रो से आते हैं। कितना टाइम लगता है मेट्रो में? आधा घंटा लगता है। कितने बजे घर से चले थे? 45 मिनट पहले चले थे। मैंने कहा कभी भी आपने ये कैलकुलेट किया कि घर से मेट्रो स्टेशन जाने में कितना टाइम लगता है, मेट्रो स्टेशन में पहुंच के एलिवेटर में या स्टेयर्स में कितना टाइम लगता है, सिक्योरिटी चेक में कितना टाइम लगता है, मेट्रो अगर भरी हुई आ रही है अगले को पकड़ने में कितना टाइम लगता है, जहां पे आप उतरते हैं वहां पे उतरने के बाद आपको स्टेशन से बाहर आने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद वॉक करना है, रिक्शा लेना है, जो भी करना है उसका टाइम जोड़ा आप। ये सब करके फिर आप कॉलेज में पहुंच के आपको अगर 3rd फ्लोर पे पहुंचना है क्लासरूम के लिए, उसमें आपने टाइम जोड़ा। तो ये क्या प्लानिंग हुई आपकी?
आधा घंटा मेट्रो में लगता, 45 मिनट पहले मैं निकला हूं, ये सब कहाँ गए बीच में? तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि हम खाली थ्योरी रटा देते हैं बस। मुझे थ्योरी से कोई परेशानी नहीं है, आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स कि एवरी थियोरी हैज कम फ्रॉम प्रैक्टिस, चाहे वो साइंस की थ्योरीज हो या वो सोशल साइंस की थ्योरीज हो, जो कि मैनेजमेंट में हमें दोनों चाहिए हो। सो वी हैव टू एक्शन एंड एप्लीकेशन वर्ल्ड के तरफ ध्यान दें, एंड रोल ऑफ अ स्टूडेंट टू रोल ऑफ एन एम्प्लॉय। यही आपको 1.5 साल है जिसमें आपको ये सारी तैयारियां करनी है। नेक्स्ट प्लीज। तो क्या होता है, वन मोर क्लिक, या थैंक यू। सो होप्स हैं आपकी, क्यों आए हो, एक्स्ट्रा पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको सेम जॉब मिलनी थी तो नहीं करते ना। तो व्हाट आर योर होप्स, व्हाट आर योर एम्बिशंस, व्हाट आर योर फैंटेसीज, एंड व्हाट आर योर fears about career? And I can give you examples of everything because I have done campus recruitment for escorts when I was heading the HRD in all the good engineering and management colleges that existed then. तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स का भी मौका मिलेगा, तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे उनके फैंटेसी सपने देखते थे विदाउट नोइंग द रियलिटी, वही ड्रीम्स एंड रियलिटी। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द रियलिटीज as you have the dreams। नहीं तो क्या होगा, आपको अचानक जोर का झटका जोर से ही लगेगा। पर अगर आपने ये सब प्रिपरेशन अपने दिमाग में कर रखी है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट प्लीज, देन व्हाट यू गेट इज जोर का झटका आपको धीरे से लगेगा। ये अगले स्लाइड में रियलिटी शॉक की बात की गई है। वन मोर क्लिक प्लीज। सो रियलिटी शॉक हैज बीन डिफाइंड बाय ह्यूग्स इन 1958 कि जो आपने सोचा नहीं था यहां आपको झटका लग गया, तो वो झटका ना लगे उसकी तैयारी हमें करनी है एज अ यंग प्रोफेशनल। नेक्स्ट प्लीज। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको सोचना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इनमें। क्विकली आप इन 6 क्वेश्चंस को अभी सिर्फ पढ़ लीजिए, इन पे काम करिएगा, एंड देन व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस। आपकी एम्बिशन क्या है? What is your ambition? क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है? सेकेंड, नेक्स्ट प्लीज। आपकी यार्डस्टिक क्या है सक्सेस की? आपको कब ये कन्विंस होंगे आप खुद कि भाई मैं सक्सीड हुआ हूं? जैसे अगर मैं क्रिकेटर हूं तो मेरा पहला, मैं स्कूल में पढ़ता हूं, जैसे तेंदुलकर भी था कभी, विराट कोहली भी था कभी, तो उसका क्या होगा कि मैं स्कूल की टीम में, दैट इज माई ड्रीम, स्कूल की टीम में आ गया। अब मेरा नेक्स्ट ड्रीम क्या होगा कि मैं और अच्छा खेलूं ताकि मुझे टीम में बेस्ट प्लेयर माना जाए, वो हो गया। सो ऐसे करते करते मेरे ड्रीम्स बढ़ते जाएंगे और मेरे रियलिटीज भी चेंज होती जाएंगी, प्रोवाइडेड आई वर्क फॉर दैट। तो मैं कब मानूंगा कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूं? जब मेरे को नेशनल टीम में चांस मिलेगा, राइट? जब मेरे को इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलेगी तब मैं अपने को, या इस लेवल की जॉब मिलेगी तब मैं अपने को सक्सेसफुल मानूं। नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं इन क्वेश्चंस में क्योंकि ये आपको टाइम लगा के सोचना है। अब आपका प्लान आ गया, हाउ विल आई सक्सीड? ये है व्हाट डू आई वांट टू अचीव, पर वो कैसे करूंगा? दैट इज कमिंग हियर। देन मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूं, नेक्स्ट प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन है, लोगों से इंटरैक्शन किए बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये आपको सोचना है। सो मैं लोगों से इंटरैक्शन अपना कैसे अच्छा रखूंगा? दैट इज, यू हैव टू डिफाइन योर वेज ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल। ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट प्लीज। दिमाग से सोचना है या दिल से सोचना है? मेरा हमेशा सजेशन रहेगा, दिमाग अगर ठीक से लगाओगे तो आप का भी जगह लगेगा, नहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो ये आपकी हमेशा डिलेमा बनी रहेगी कि कितना दिमाग यूज करना है, कितना दिल यूज करना है, राइट? और इसमें मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं जो ऊपर आपको लगेगा, मैं अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जस्ट वन आई विल
गिव यू एन एग्जांपल बट आई विल नॉट एक्सप्लेन। जैसे जितने भी टीवी आप एड देखते हो, डिफरेंट कंपनीज के एड्स देखते हो, प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के एड देखते हो, आप देखोगे उस सब में इमोशनल कंपोनेंट। तो इमोशनल कंपोनेंट है और मैं बोल रहा हूं आपको दिमाग यूज करो, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगती है। दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। पर आप उसमें एनालाइज करोगे, उसमें दिमाग लगाओ कि एड इमोशनल क्यों है। क्योंकि सेल्स मार्केटिंग वालों का, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों का काम क्या है? मार्केट शेयर बढ़ाओ, राइट? हमारी सेल्स टर्नओवर बढ़नी चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि इंडियन कस्टमर बड़ा इमोशनल होता है, उसको हम इमोशनल मैसेज देंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा, तो ये मैनेजमेंट की तरफ से ये इमोशनल डिसीजन है या हेड का डिसीजन, ब्रेन का डिसीजन है, आर्ट का है? बिल्कुल हेड का डिसीजन है कि अगर मैं इमोशनल होके बोलूंगा तो लोग ज्यादा मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इट्स अ वेरी रैशनल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, दैट इज व्हाई दे डू इट। तो जहां आपको लगता भी है कि तो इमोशन लेडन है, उसके पीछे एक्चुअली आपको दिमाग ही दिखेगा। और इसका क्लासिक केस मैंने इसमें लिस्ट भी किया हुआ है। अगर आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी देखोगे, यही आपको निकल के आएगा। आई एम वेरी हैप्पी गौरव जी ने जियो का भी एग्जाम्पल लिया। क्या वजह है मुकेश अंबानी 2 लाख करोड़, उन्होंने 1.5 लाख, मेरा जो मैं शेयर होल्डर हूं रिलायंस का, तो मुझे अंदाजा है कि शायद 1.5 लाख से ज्यादा ही आया है इतने बुरे टाइम पे जहां कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता। वो कैसे? क्योंकि वो दिमाग से चलता है। और अनिल अंबानी के सारे डिसीजंस इमोशनल होते हैं, तो वो डूबता चला जा रहा है और डूब ही गया है। सो एक ही फैमिली में एक ही फादर के ट्रेंड 2 जने कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। क्लासिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया 5 पॉइंट पे, वन मोर क्लिक प्लीज। या सो इमोशंस या इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं ये कहूंगा कि मार्केटिंग वाले, एडवर्टाइजिंग वाले इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। वो दूसरों के इमोशंस को समझने के बाद उनको कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इमोशन है कि जो मेरे को फील हो रहा है मैं वो एक्सप्रेस कर देता हूं, और इमोशनली इंटेलिजेंट वो है जो दूसरे की फीलिंग को समझ के अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये आपको 5-6 सवाल सोचने हैं और अपने नतीजों पे पहुंचना है। एंड इफ देयर इज अ डाउट वी कैन ऑलवेज क्लैरिफाई इन अ प्रॉपर सेशन लेटर। नेक्स्ट प्लीज। तो ये समरी है। नेक्स्ट स्लाइड आप दे दीजिए 6 के 6 पॉइंट एक साथ। ये हमने समरी मैंने कर दी आपके लिए, जो जो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस एग्जामिनेशन की सोच से हटिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। नॉलेज पहला पार्ट है, उसको स्किल। भाई स्कूल क्रिकेट में हम भी खेल लेते थे, बैटिंग भी कर लेता था मैं, तो धोनी और विराट कोहली दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, विकेट कीपिंग भी करता था। फिर क्या हुआ? कहाँ गोल हो गया, कहाँ फेल हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया आगे? बिकॉज मेरे में वो स्किल नहीं है जो फील्ड के अंदर करना है। नॉलेज तो है, वो स्किल नहीं आ पाई, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे आपको, राइट? तो नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए। और ये लोग भी कभी फर्स्ट बॉल आउट होते हैं, बहुत सिंपल कैच मिस होता है, स्टंपिंग मिस होती है, पर वो छोड़ नहीं देते, तब उनको पॉजिटिव एटीट्यूड। बिगेस्ट ऑफ फिल्म स्टार्स आल्सो हैव फ्लॉप फिल्म्स, वो फिर एक्टिंग छोड़ नहीं देते, अगले फिल्म में और अच्छा करने की कोशिश करते। तो दैट इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो लर्निंग लीजिए, सेकेंड पॉइंट जो है, एंड देन गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, सबका लर्निंग लेके आगे चलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। ये नर्सरी केजी वाला मैम ने नहीं पढ़ाया या सर ने नहीं पढ़ाया इसलिए मुझे नहीं आता, ये आप इंटरव्यू में नहीं कह सकते। ठीक है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, नो वन इज गोइंग टू रिजेक्ट यू ओनली बिकॉज यू डू नॉट नो। आप उसके आगे क्या कहते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। सिंपली एडमिट करिए, सर आई डोंट नो, बट इफ यू गिव सम टाइम आई विल कम बैक विद द आंसर। वी आर लुकिंग फॉर सच पीपल कि मेरे को भी बहुत चीजें नहीं आती, पर मैं सीखना चाहता हूं या नहीं। ये क्या बात हुई, मैम पे सर पे डाल के हट गए।
वो इमीडिएटली माय असेसमेंट इज कि आप कल को बोलोगे बॉस ने नहीं बताया इसलिए मैं नहीं कर पाया, कलीग ने नहीं बताया, जूनियर ने नहीं बताया। भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या सोचा, क्या आपने उनसे पूछा? दैट इज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी वी वांट इन आवर पीपल। रिजल्ट ओरिएंटेशन, आपने रिजल्ट क्या दिया? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं महीने में और आप मेरे पास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप जब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 50,000 की सैलरी चाहते हैं मेरे से। तो अगर मेरे को इसी 10 लाख में से 50,000 आपको देने पड़े तो मेरे को क्यों दूंगा? मैं पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है मेरे को, मैं फैमिली मेंबर तो हूं नहीं। ये जो ओवर इमोशनल लोग इंडिया में कल्चर में है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। ये बिजनेस है, यहाँ पे आपको बताना है कि मैं सर आप 10 लाख कमाते हो, ये देखो 1 लाख में ऐसे आपको कमा के दूंगा, उसमें से 50,000 मुझे दे देना। अब ऐसे आदमी को मैं क्यों छोड़ूंगा? हर महीने अगर मेरे को आप 50,000 और लाके दोगे, आपको मुझे 50,000 देना है, परफेक्टली फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी इनकम 10.5 लाख हो गई। तो उस एंगल से सोचिए, रिजल्ट क्या लाके देंगे आप। ये मत कहिए मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, बैठा रहता हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ, रात को 8 बजे से पहले जाता नहीं हूँ। उससे कुछ नहीं होने वाला। व्हाट इज द रिजल्ट यू प्रोड्यूस? आप कितना ही अच्छा फुटबॉल या क्रिकेट खेल लें, आपने अगर 1 गोल ज्यादा या 1 रन ज्यादा नहीं बनाया तो आप नहीं जीत सकते। सिंपल। मैनेजरियल वर्सेस क्लेरिकल ओरिएंटेशन, आप लोग यहाँ पे मैनेजरियल ओरिएंटेशन के लिए आ रहे हैं, यानी कि आपका दिमाग पहले चलना चाहिए और उसके बेसिस पे हाथ मुंह पैर चलना चाहिए। और क्लेरिकल है पहले घुसा मार दो, फिर सोचो यहाँ तो 20 लोग हैं, आपको वहां हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिट जाओगे वहां। अगर गुंडों ने घेर लिया आपको तो वहां से आप कैसे बच के निकलोगे वो आप सोचो, और कल जब आप होंगे तो उनको बदला कैसे दोगे वो सोचो। सो यूज मैनेजरियल ओरिएंटेशन रादर देन क्लेरिकल ओरिएंटेशन। बिना सोचे समझे कर दिया फिर रोते रहे। और ऑब्जेक्टिव फोकस्ड अप्रोच, हमेशा हमेशा, जिसको थिंकिंग थ्रू प्रोसेस भी बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। मैं चाहता क्या हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूं, इज नो सॉल्यूशन। वो आप पर्सनल लाइफ में करते रहिए। प्रोफेशनल लाइफ में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मुझे उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। मुझे अगर जयपुर जाना है तो मैं आगरा का हाईवे थोड़ी पकड़ लूंगा, वो तो मैं और दूर होता जाऊंगा दिल्ली से। अगर मुझे जयपुर जाना है और मैं आगरा हाईवे पे चल लिया, फिर मुझे उतना वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो हमेशा हर स्टेप पे सोचो कि मेरा एंड ऑब्जेक्टिव ये है, और जो मैं कर रहा हूं विल इट लीड मी टू माय एंड ऑब्जेक्टिव और नॉट। एवरी स्टेप यू हैव टू काउंट। प्लीज रिमेंबर, अगर आपको अच्छी सी पनीर बनानी है या अच्छा सा चिकन बनाना है, अगर आप पहले स्टेप में ही बुरा पनीर, सड़ी हुई पनीर या सड़ा हुआ चिकन खरीद लेंगे, कभी भी आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। और ये भी नहीं कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी पनीर खरीद ली और बहुत अच्छा क्वालिटी चिकन खरीद लिया, पर उसको इतना उबाल दिया कि वो गल के सब लेई बन गई, तो भी नहीं अच्छा बनेगा। सो एट एवरी स्टेज कितनी हीटिंग करनी है, कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, कितना पानी डालना है, all that has to be perfect, then only you will get a perfect gravy of paneer or chicken. तो ऑब्जेक्टिव को कभी मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। बहुत लोग आपको बहकाएंगे, दोस्त छोट क्लास अटेंड करके क्या होगा, फला होगा, ढिमकान होगा। उन चीजों से मत बहकिए, और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए जो स्कूल में आदत रहती है, हमने टीचर को बुद्धू बना दिया। कोई टीचर को नहीं बुद्धू बनाया, अपने अपने को बुद्धू बना रहे हो। टीचर का क्या नुकसान कर रहे हो? नौकरी किसको चाहिए, इंटरव्यू किसको फेस करना है, करियर किसको चाहिए, सैलरी किसको चाहिए? टीचर ने तो अपनी करियर बना ली। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स राइट इन द बिगिनिंग, तभी आप एक मैच्योर, अभी आएगी वो भी बात, अनफॉर्चुनेटली आज सारा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, बट कोशिश है। तो नेक्स्ट प्लीज। सो मैनेजमेंट एजुकेशन मेरी समझ से इट शुड बी लाइक अ पुलिसमैन बुलेट स्ट्रैप। जितना आप कैप्चर कर सकते हो सारे बुलेट्स भर लो अपने स्ट्रैप में, क्योंकि आगे क्या सिचुएशन आएगी यू डोंट नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिचुएशन आपके बॉस ने दे दी और आपको लगता है यहाँ तो 14 नंबर फॉर्मूला लगेगा, और 14 नंबर बॉक्स में जब आप देखोगे
तो वो 14 नंबर खाली है. सो यू हैव टू गैदर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी चीज कहां पे काम आ जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. एमबीए का पहला वर्ड ही एम से शुरू होता है और मैच्योरिटी. इस मैच्योरिटी को आप डे 1 से लाइए. अपने भले बुरे को क्लियरली समझिए और सिचुएशंस को भी मैच्योरली हैंडल करना शुरू करिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैनेजमेंट एजुकेशन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मैच्योरिटी इन द पर्सनैलिटी. बाकी तो आप कर लोगे. अगर आप एमबीए तक पहुंच गए हो तो कोई किताबें जो लिखी हुई है पढ़ नहीं सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते. उसको यूज कैसे करना है उस पर हमेशा ध्यान दो. नेक्स्ट प्लीज. ये मैं बता चुका हूं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने का नहीं है कि हमेशा दूसरे लोग आपके सिलेक्ट करेंगे. हमेशा ध्यान रखो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनका डिसीजन आपके बारे में उनकी सोच की वजह से होगा. अगर मैं आपके घर आता हूं और आपके दिमाग में है कि सुमित चौधरी अच्छा आदमी है, तो शायद आप लाखों रुपए छोड़ के ड्राइंग रूम में मेरे को अकेले छोड़ के भी चले जाओगे. ये नहीं सोचोगे कि मैं उसमें से चुरा लूंगा. पर अगर आपके दिमाग में मेरे बारे में ये इंप्रेशन है कि ये तो चोर आदमी है, तो यू विल नेवर डू दैट. 10 रुपए भी नहीं छोड़ो. तो आपका बिहेवियर मेरे ओरिजिनल मैं क्या हूं उससे नहीं है. आप मेरे बारे में सोचते क्या हैं. What is the impression you have about me will determine whether you will trust me or you will not. तो सिमिलरली सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप आओगे तो जो आपकी इमेज मेरे सामने बन रही है, मेरी डिसीजन उसके बेसिस पे होगी और मैं ही फैसला करूंगा. मैं मीनिंग जो भी कंपनी से आए हैं आपकी सिलेक्शन के लिए, दे विल थिंक ऑफ दैट. तो दूसरों का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिए. नेक्स्ट प्लीज. तो हमेशा ये भी मैं बता चुका हूं आपको, दूसरों के परसेप्शन में सक्सेस किसको माना जाता है, फेलियर किसको माना जाता है, क्यों माना जाता है. कोई सक्सीड किया तो क्यों किया, कोई फेल किया तो क्यों किया. उन सब में से निचोड़ निकालिए और अपने पर्सनालिटी में फिट करिए. और हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है, सोच लीजिए. आप अगर बुमराह से सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और विराट कोहली से विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है. आपकी सोच गलत है, ना कि उनकी. सो सक्सेस एंड फेलियर में अपनी कॉम्पिटेंस को घुसाइए और देखिए कैसे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. चौथा चैलेंज जो हम बड़े तगड़े तरीके से डील कर रहे हैं, कोविड का चैलेंज भी डिसरप्टिव चैलेंज है. तो हमेशा जिंदगी में स्मूथ चलते चलते अचानक कुछ झटका आएगा. आप कार चला रहे हैं, 100 किलोमीटर चला लिया, पर अचानक एक गड्ढा आ गया. तो क्योंकि आप 100 किलोमीटर तक बड़े स्मूथली चले हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अलर्टनेस करके क्या फायदा, वहां तो आराम से चल रही है गाड़ी. कहीं ना कहीं खड्डा आ सकता है. तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है और जो डिसरप्शन आती है उसको हैंडल करने के लिए मेंटल तैयारी करके रखिए. जरूरी नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन होगा. कोविड का सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है और अभी भी नहीं है, पर एफर्ट जारी है. तो मेंटली आपका झटका कम हो जाएगा अगर आप ये मान के चलेंगे कि जिंदगी में कभी भी झटका लग सकता है. दैट इज द होल आइडिया ऑफ डिसरप्शन. और मैंने कई एग्जांपल्स आपको दिए, होटल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, मोबाइल में, कैसे कैसे डिसरप्शंस आई. नेक्स्ट प्लीज. ये सब एग्जांपल्स हैं डिसरप्शन के. तो मेरा आइडिया था टू गिव यू सम एग्जांपल्स. इसको आप एक लिस्ट बन गई, अब आप इन पे थोड़ा काम करेंगे कि इसमें क्या डिसरप्शन हुआ, कैसे नहीं हुआ. देन ओनली अ डिस्कशन विल बी वैलिड. ईच वन ऑफ दिस कुड बी अ केस स्टडी. राइट. नेक्स्ट प्लीज. वन मोर. या अब इतना कुछ कहने के बाद मैं आपको कहता हूं मैनेजमेंट इज डेड, और उसके बाद ये भी कहता हूं लॉन्ग लिव मैनेजमेंट. आप कहोगे ये तो बिल्कुल ही पागल आदमी है. हाउ कैन बोथ हैपन टुगेदर? अगर मैनेजमेंट डेड हो गया तो लॉन्ग लिव कैसे हो? ये मेरा काम है आपको क्वेश्चन करना, और ये फिर वही निचोड़ है जो कुछ हमने किया. नेक्स्ट प्लीज. मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैनेजमेंट इज डेड ओनली इन द traditional sense. Next please. Management is dead only in the, one more click please, only in the traditional sense. यानी कि
1980 में, 1990 में, 2000 में जो टेक्निक्स यूज होते थे मैनेजमेंट में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की प्रॉब्लम्स उन टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। आपको उस सेंस में मैनेजमेंट डेड हो चुका है, आपको नए टेक्निक्स की तरफ जाना है। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाई इज दिस लेडी डांसिंग? बिकॉज द गुड न्यूज इज कमिंग। लॉन्ग लिव मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि आप 2020 के वर्जन में हैं अभी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते हैं, वैसे ही आपके मैनेजमेंट में भी ऐड होते रहें तो इट विल सर्वाइव टिल इंफिनिटी। कहीं नहीं जा रहा मैनेजमेंट, राइट? ये आपको समझाने का मेरा तरीका था कि नई चीजों से समझने की कोशिश करो और जो जो उसमें काम करे उसको सीखते चले जाए। दैट इज द होल मैसेज। अपने को इंप्रूव करते रहोगे वर्जन्स तो you will always be more and more successful. Next please. So 2020 वर्जन से इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वूका वर्ल्ड, ये जो डिसरप्शन है, इस डिसरप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है, पिछले 20-30 सालों में एक्टिव हुआ है। आई थिंक मिड-80s में आया था ये पहली बार, और जहां तक मुझे याद आ रहा है, और फिर ये 30-35 सालों में इट हैज बिकम अ प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट। तो मेरे को अभी यहाँ एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव ओनली 6-7 मिनट्स। Is it possible to extend by a few more minutes than that? Because we started 5-7 minutes late. So if it is possible, then it will be nice. So VUCA world मैं आपको explain नहीं करूंगा। VUCA का मतलब क्या है? Next please. 4 वर्ड्स से ये लिया गया है। Next please. VUCA का मतलब है volatility, uncertainty, U से uncertainty, C से complexity और A से ambiguity। ये 4 चीजों का मिश्रण है जो आज हम दुनिया में फेस कर रहे हैं। सो वी हैव टू लुक एट दैट। नेक्स्ट प्लीज। तो इस पे थोड़ी पढ़ाई करिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, थोड़ा नॉलेज आपका वूका का होना चाहिए। कभी मौका मिला तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने इसमें सिर्फ आपको सिंपल सा वन मोर प्लीज। नेक्स्ट। अभी वूका एक्सप्लेन, वूका की जो 4 बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट प्लीज। वो मैंने समराइज कर दिए कि वूका जानने से। नेक्स्ट प्लीज। देयर आर 4 बेनिफिट्स, यू कैन पुट वन आफ्टर द अदर। या थैंक यू, थैंक यू। सो ये फायदे होते हैं वूका को समझ, बट एज आई सेड वी डोंट हैव टाइम टू फॉर दिस। ये तो पूरे 2-2, 3-3 क्लास लग जाता है समझाने। ओके, तो आपको आइडिया होना चाहिए, खुद आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। परसिस्टेंट पॉजिटिविटी, नेक्स्ट पॉइंट, 5वां स्टेप जो है हमारा, परसिस्टेंट पॉजिटिविटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। या सो ये भी मैं हिंट कर चुका हूं आपको कि हर एक बंदे को कहीं ना कहीं फेलियर मिलेगी, तो उस पे आपको disheartened नहीं होना है। You have to continue working on the path. You have to retain your positivity, and that is where I can give you very prominent examples. Next, please. Next. Yeah. So this is an interesting slide. इस बंदे के पास सिर पे एक ही बाल है, पर फिर वो छोड़ नहीं रहा, कंगी वंगी करके अपने को स्मार्ट बना रहा है, right? So that is positivity for me, right? नेक्स्ट प्लीज। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये फुर्सत में पढ़ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो वाई पूछते रहते हैं, और जो ड्रीम अच्छा देखते हैं, रियलिस्टिक देखते हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, कोशिश कर। तो जॉर्ज बर्नार्ड का ये सेइंग है। नेक्स्ट प्लीज। सो आपको भी ऐसे एक्सप्लोर करना है, भाई ये ऐसे होता आया है पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं करके, कोशिश करते हैं, नो हार्म। सो दैट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट प्लीज, वन मोर। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ 2 of the greatest leaders of the world, ये आप पहचान गए होंगे, अब्राहम लिंकन हैं
इसको आप डिटेल में पढ़िएगा बाद में, कितने फेलियर्स इनकी लाइफ में आई, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 21 टिल द एज ऑफ 52, यानी कि 31 साल इन्होंने स्ट्रगल किया, और फिर 52 साल की उम्र में ही became the president of America, which is even today considered the most powerful position in the world. failure. कोई आम आदमी होता तो वो कब का छोड़ दिया होता, but he never lost his positivity and it paid off. Second leader, our very own, next please. आप सभी जानते हैं, next slide. I don't have to tell you who he is. But the thing is, yes, आपको शायद पता नहीं होगा कि 2 बार अब अराउंड 10 साल के इंटरवल्स पे, एक बार 1891-92 में गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से और राजकोट में एडवोकेट बने, फेल हो गए। फिर कहीं 1901-2 के आसपास 10 साल बाद फिर आए, बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, फिर फेल हो गए। बट अल्टीमेटली महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे, और आपको शायद वो स्टोरी पता ही होगी कि 1893 में जोहानिसबर्ग स्टेशन में ट्रेन से किसी गोरे ने उनको बाहर फेंक दिया था। अगर कोई आज पूछे कि भाई उस गोरे का नाम बताओ, कोई बता सकता? किसी को भी नहीं पता वर्ल्ड में। पर महात्मा गांधी का नाम किसको नहीं पता? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बिना फेलियर के सक्सेस होता ही नहीं। फेलियर होगा, हमें उससे फाइट करना है। राइट नाउ एनी गेस, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5-7 minutes? Yes, is it sir. all right? Okay, sir. Thank you so much. Okay, any guess किसकी बात कर रहा हूँ? नेक्स्ट स्लाइड में one more click please, rather 2 clicks. next slide. yeah, any guess? सबसे ज्यादा, ये फोटो आ गई तो आप पहचान ही जाओगे, ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप महाभारत की स्टोरी पढ़ोगे और आप बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं मथुरा से, उसी स्टेट में बैठे हुए हैं, मतलब जब आप आएंगे लॉयड बिजनेस स्कूल में नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो यूपी में ही है। तो इनका जो है मथुरा में जन्म हुआ था, वहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, और पूरे महाभारत एक इतना बढ़िया मैनेजमेंट की स्टोरी है क्योंकि हर तरह के कैरेक्टर उसमें हैं। बड़े से बड़े साधु संत, शैतान से शैतान लोग, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत बुद्धू लोग, बहुत चालू लोग, कोई कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। तो इनकी लीडरशिप को आप स्टडी करोगे तो आपको सारी मैनेजमेंट समझ आ जाएगी। तो इनमें तो पूरा मैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का कोर्स करा सकता हूं आपका, कृष्णाज लीडरशिप स्टाइल। हर एक कैरेक्टर को कैसे उन्होंने हैंडल किया, हर एक से उन्होंने सही काम करवाया। सही मतलब जो एथिकल काम था। कई बार आपको लगता है कि कृष्णा के स्टाइल में कहीं कहीं गड़बड़ है, ये थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, गलत रास्ते पे लोगों को ले जाते हैं, ऐसा फील हो सकता है। बट आपको कभी अंधेरा करा दिया जब हार रहे थे तो, पर अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि क्या वो सही को सपोर्ट कर रहे हैं या गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको चोर की चोरी पकड़नी है तो आप उसको ये नहीं कह सकते भाई तू 2 बजे के बाद आना, तब तक मेरा कैमरा लग जाएगा, फिर तेरे को पकड़ेंगे। आपको चोरी से चोर को पकड़ना है। तो वी गेट फैंटास्टिक आइडियाज फ्रॉम महाभारत एंड हाउ ही हैंडल डिफरेंट कैरेक्टर्स। हर एक के साथ उनको सक्सेस मिलती है, पर उनका भी एक कैरेक्टर फेलियर था, राइट? अगर हम आमने सामने होते मैं अभी थोड़ा टाइम लगाता और आपसे निकलवाता, पर अभी मैं बता देता हूँ टाइम की कमी की वजह से कि शिशुपाल वो वन कैरेक्टर जिसको उन्होंने पहली बार में नहीं मार दिया, 100 मौके दिए, सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, बट अल्टीमेटली इवन लॉर्ड कृष्णा फेल्ड and he used Shankar to kill Shishupal. So we need to understand this कि हर इंसान की जिंदगी में कितना ही सक्सेसफुल लीडर हो, कोई ना कोई जो है आपको टेढ़ा बंदा मिलेगा।
तो हमें उसको भी हैंडल करना है। और आप थोड़ा सा सोचिए, मैंने अभी अब्राहम लिंकन की बात करी और मैंने महात्मा गांधी की बात करी, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी do not forget that both of them were assassinated, which means कोई ना कोई उनसे नाखुश था। मैं सही गलत में नहीं जा रहा, but somebody was unhappy with them। इतने बड़े लीडर भी सारी दुनिया को नहीं खुश कर पाए, कोई ना कोई उनका एंटी बंदा निकल आया जिसने मार डाला। So that is what we have to learn. Okay, next. So अब हम समरी की तरफ चलेंगे इसके बाद। Now rest is on this Krishna management. इसको छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। Let us come to slide 68 तक चले जाइए, बाकी सब कृष्णा के उससे डेरिवेटिव्स हैं तो कैन लर्न। या सो मैनेजमेंट का इजीएस्ट डेफिनेशन जो मिलता है, एक पीछे प्लीज, 68। थैंक यू। या सो मैनेजमेंट के वर्ड से ही निकल आता है कि मैनेजमेंट है क्या। इट इज मैनेज मेन, T stands for tactfully, and of course now there are so many women in the workforce, so men word here includes women also obviously। so उनको अगर आप tactfully handle कर लेंगे, आप देखेंगे कैप्टन ऑफ द टीम नीड नॉट बी द बेस्ट बैट्समैन। धोनी के पूरे सक्सेस स्टोरी में कोई ना कोई उनसे बेटर बैट्समैन जरूर था। एक टाइम पे ही हैड तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल बैट्समैन। बट कैप्टन में हर स्किल होना जरूरी नहीं है, बट दूसरे बंदों को अगर आप हैंडल कर लेते हो तो आप, एंड बाद में कोहली ऑफ कोर्स, सो एंड रोहित शर्मा, सो आप इनको हैंडल कर लोगे तो अपने आप हो जाएगी। दैट इज व्हाट अ मैनेजमेंट लीडर हैज टू लुक एट, कि दूसरों के अच्छे स्ट्रेंथ्स को कैसे वो यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। 6th है वे अहेड। दैट मीन्स हमें आगे कैसे चलना है, दैट इज द वे अहेड। ये कंसेप्चुअल है, इसको मैं छोड़ देता हूं। 3 चीजें होनी चाहिए, विजडम, स्किल एंड एक्चुअली डूइंग इट, व्हिच इज वर्च्यू। लेट अस गो टू हाउ डू वी डू इट। आपको 3 चीजें करनी है। कुछ कुछ बातें हम कर चुके हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आपको स्किल बढ़ाना है, और आपका नॉलेज भी साथ साथ बढ़ना चाहिए। इनमें से अगर आप एक को भी नेग्लेक्ट करेंगे, या नेक्स्ट इज द ट्रायंगल, कॉम्पिटेंसी ट्रायंगल आपके सामने है पिक्चर में। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो लिखा हुआ है वो है अमाउंट ऑफ सक्सेस। आज की डेट में आपने स्कूलिंग की, कॉलेज कंप्लीट की और आप एमबीए में आ पाए हैं, ये सारा आपका सक्सेस है। इसके अलावा भी देयर कुड बी अदर सक्सेसेस, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, थिएटर में, व्हाटएवर। ये आपकी करंट सक्सेस है। हर एक का अलग अलग ऐसा ट्रायंगल बनेगा। आप अपना ट्रायंगल बना के सोचें कि ये मेरे सक्सेस जो जो मिल चुके हैं वो इसके अंदर भर दीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इज, डू यू वांट मोर सक्सेस? टिपिकली आंसर क्या होगा? किसी को भी पूछा जाए आपको और सक्सेस चाहिए, 99.999999 पीपल विल से हाँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, 200 हो जाए तो अच्छा है। मैंने 100 सेंचुरी कर ली तेंदुलकर जैसे, तो मेरे को 105 हो जाए तो और अच्छा है। एवरीबडी वांट्स मोर सक्सेस। तो मोर सक्सेस अगर आपको भरना होगा तो इस ट्रायंगल की साइज बढ़ानी होगी, तभी बड़ा दिखेगा ना, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री। तो वो बढ़ाने के लिए मुझे करना होगा, मुझे नॉलेज पे ध्यान देना होगा। मेरी स्किल, अभी अभी मैंने बोला स्कूल क्रिकेट में तो मैं बैटिंग भी कर लेता था, विकेट कीपिंग भी कर लेता था, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? नॉलेज तो आज भी है मुझे, मेरी स्किल नहीं बढ़ पाई उतनी जो मैं उस लेवल पे compete कर सकूं। तो खाली नॉलेज होने से नहीं चलेगा। आप कार ड्राइविंग पे 100 किताबें पढ़ के बैठ जाओ, थियोरेटिकली सब आ जाएगा आपको, पर क्या आप गाड़ी चला लोगे? स्विमिंग के ऊपर आप पढ़ लो 100 किताबें, अरे पता टेक्निक थियोरेटिकली सब आ जाएगा, पर आपने कभी पानी में कूदे नहीं तो आप स्विमिंग सीख जाओगे। सो दैट इज हाउ
knowledge has to be converted into skill by practicing, right? The best of players also have to practice, the best of actors also have to rehearse. And जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, फेलियर कभी ना कभी होगी, तब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सेव करेगा, राइट? तो फेलियर को अंत मत मान लीजिए, उसको आप एक स्टेप मानिए और उसको इंप्रूव करिए. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते. नेक्स्ट प्लीज. तो एटीट्यूड, नेक्स्ट प्लीज. आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव है, पर आपने नॉलेज पे फोकस नहीं किया, स्किल पे फोकस नहीं किया. नेक्स्ट प्लीज. तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया बढ़ेगा क्या? इस तरह का ट्रायंगल बनेगा आपका. ट्रायंगल का साइज सेम है, खाली आप पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं. इसी तरह से नेक्स्ट प्लीज. अगर आप स्किल बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, पर आप नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, तो लोगों को शुरू के 2-4 बार आपसे मिलके बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो. पर उसके बाद आपने नॉलेज नहीं बढ़ाई, तो आप वही चीज रिपीट करते रहोगे. तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, लोग बोर हो जाएंगे. तो स्किल बढ़ाने से खाली नहीं चलेगा, एटीट्यूड बढ़ाने से खाली नहीं चलेगा, आपको तीनों चीजें बढ़ानी पड़ेगी. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट आपको नॉलेज बता रहा है, वो भी बढ़ाइए. नेक्स्ट प्लीज. ये आपकी समरी है कि आप एक एक बढ़ाने से नहीं चलेगा, आपको अमाउंट ऑफ सक्सेस बढ़ाने के लिए तीनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. खाली आप टॉपर हैं, 100% मार्क्स आते हैं, पर आप एक सिंपल सा प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका स्किल नहीं है, इसका मतलब. तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप कितनी पढ़ाई करते रहिए. सो आपको पढ़ाई तो करनी है, बट उसके साथ साथ उसको यूज कैसे करना है, वो स्किल डेवलप करना है. और ये मान के चलना है, कभी कभी फेलियर होगा भाई, कोई बात नहीं, वी विल रिकवर फ्रॉम दैट. सो मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? नेक्स्ट प्लीज. एंड वी आर अबाउट टू फिनिश नाउ. नेक्स्ट डिफाइंस द 3 स्किल्स, उसको स्किप कर सकते हैं. द एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल. या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, राइट? 1983 के एंड में अ प्लेयर, उस जमाने में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, वो प्रैक्टिस के लिए आया स्टेडियम में, और क्या पहना हुआ था उसने? व्हाइट शर्ट तो पहना हुआ था, पर लोअर जो ट्राउजर्स थे वो ब्लू कलर के थे. कोच ने उसको भगा दिया बाहर, बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं घुसना जब तक आप प्योर व्हाइट्स में नहीं होंगे, जो क्रिकेट का ड्रेस कोड था. वो प्लेयर वापस गया और व्हाइट लोअर्स पहन के एंटर किया. और वो कोच कौन था और वो प्लेयर कौन था, अगर आप ध्यान दें और ईयर को ध्यान दें, सेकेंड हाफ ऑफ 83, राइट? नेक्स्ट प्लीज. Desh Prem Azad was the coach and Kapil Dev was the player. And can you imagine, one more click please, Kapil Dev was the reigning world champion. 1980 में प्रूडेंशियल कप, जो वर्ल्ड कप होता था, वो जीत चुका था. उसके बाद भी डिसिप्लिन देखिए कि कोच ने उसे दफा कर दिया. अनफॉर्चुनेटली आजकल ये चीजें समझ नहीं आती लोगों को. और कपिल देव और तेंदुलकर दोनों ने बोला है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करती थी, पर हमारे कोच हमेशा सोचते थे भाई थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, और उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती. नेक्स्ट प्लीज. द लास्ट पॉइंट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस फिजिकल एंड मेंटल ग्रूमिंग चाहिए. वन मोर क्लिक प्लीज, वन मोर. या तो ये भी मैंने शुरू में आपको समरी में बताया था कि आपको हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है. माइंडसेट के अंदर 2 हिस्से हैं, क्योंकि फिजिकल पार्ट जो है, जब आप एक इंटरव्यू देने घुसते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन किससे होता है? आपका फिजिकल इंप्रेशन पहला होता है. कैसे आप चलते हैं, कैसे आपने ड्रेस क्या पहना हुआ है, नहीं है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. फिर आपकी मेंटल, जब क्वेश्चंस शुरू होते हैं तो आपका माइंड कैसे काम करता है, आपकी नॉलेज क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं. आपके कई बार स्किल टेस्ट अलग से भी लिए जाते हैं, जैसे जीडी होती है. जीडी में नॉलेज टेस्ट नहीं है, स्किल टेस्ट है कि हाँ मजबूरी नहीं है आपको बोलने की, बट कैन यू इम्प्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल
when there is no compulsion to speak. मजबूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है, पर बिना बोले आप जीडी क्लियर भी नहीं कर सकते. So those kind of things which have to come from experience. Next please. तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, armed forces has always been my inspiration. इनकी तरह फिजिकल एंड मेंटल ग्रूमिंग कोई और ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नहीं देखा है कि दोनों पे एकदम 100% फोकस होता है. तो इसके बाद के जो स्लाइड्स हैं, दे आर बेसिकली फॉर योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ड्रेस कोड्स वगैरह के बारे में बात की हुई है कि कॉर्पोरेट ड्रेस में कैसे होना चाहिए, क्या है, मेंटली कैसे होना चाहिए. सो वी विल स्किप दैट पार्ट. कभी फिर मौका मिला ये ग्रूमिंग एसेंशियल्स में आ जाएगा. डूज एंड डोंट्स क्या है. नेक्स्ट प्लीज. आगे चलते जाइए. अब वी कैन कम टू एब्सोल्युटली द एंड. कस्टमर सेंट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है. इस पे तो बहुत चीजें बताने की है. पहला इंप्रेशन खराब मत करिए अपना, वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको ब्रेन और ब्यूटी का कॉम्बिनेशन बोलता है, विच गिव्स यू. नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे, ये फिजिकल एंड मेंटल ग्रूमिंग के पॉइंट्स हैं. वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू, आई विल टेल यू द स्लाइड. इस कोड मेन विमेन, ये 3-3, 4-4 दिन के कोर्सेज होते हैं पूरे. काइंडली चलते जाइए. वी कैन कम टू स्ट्रेट अवे स्लाइड 98. वो बेसिक मैसेज है पूरे आज के डिस्कशन का, आज के थीम का. इट टॉक्स अबाउट, या वन मोर, 98. ये देखिए 98 एक बुक लिखी गई है, बॉर्न टू रन, उसमें से लिया हुआ है. ये क्रिस्टोफर मैकडॉगल की बुक है. एवरी मॉर्निंग इन अफ्रीका अ गैज़ल वेक्स अप. गैज़ल मतलब हिरन, डियर. And it knows that it must run faster than the fastest lion. शेर जो सबसे स्पीड पे भागेगा, उससे भी तेज मैं नहीं भाग पाया तो मेरी जान खतरे में. सिमिलरली अ लायन वेक्स अप एंड उसको पता है कि लोएस्ट डियर जो होगा उसके स्पीड से ज्यादा मैं अपने को नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा. सेम थिंग अप्लाइज टू यू. प्रिपेयर कैसे करना है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके साथ एट द वन लेवल सीखना भी है उनसे, एंड एट द सेकंड लेवल उनसे compete भी करना है. दैट इज द वे टू सक्सेस, कि मुझे रोज इंप्रूव करना है कुछ ना कुछ. राइट. सो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप बहुत बड़ा मिलेगा. नेक्स्ट प्लीज. These are some of the qualities of a good management professional, और मैंने इनको नाम के साथ साथ रिलेट कर दिया है ताकि आपको कुछ आइडियाज मिले. चलते जाइए प्लीज. महात्मा गांधी जैसे निगोशिएशन स्किल्स. नेक्स्ट प्लीज. इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, एंड तक ले जाइए, राइनोसरस तक. केयर एंड कंपैशन ऑफ मदर टेरेसा, वो भी आप में होना चाहिए. ब्रेन डॉक्टर कलाम जैसा होना चाहिए. धीरू भाई अंबानी जैसे बड़ी बिजनेस की मेंटालिटी होनी चाहिए, जीरो से शुरू करके काम ले गए रिलायंस को. चार्म एंड कैरिस्मा, पीवी सिंधु कैसे मेडल पे मेडल जीत रही है. एंड ये 5 चीजें दूसरों को हैंडल करने के लिए चाहिए आप. और लास्ट वाला जो है, वन मोर प्लीज, चमड़ी मोटी भी रखनी है मैनेजमेंट में, क्योंकि लोग आपके अच्छे काम करने के बाद भी लोग गालियां देंगे. गो बैक टू अब्राहम लिंकन एंड महात्मा गांधी, दोनों ने इतने अच्छे काम किए फिर भी किसी ने मार दिया. तो आप अच्छे काम के बाद भी कुछ लोग आपको गालियां देंगे. आपकी मोटी चमड़ी उस चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए होना चाहिए. दैट इज द. नेक्स्ट प्लीज. 2 small points but very important. जब भी आप डिसीजन, एंड एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल यू विल हैव टू मेक डिसीजंस. हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड, अगर इन 4 सिचुएशंस में आप हैं तो अपने को रोक लीजिए डिसीजन लेने से, क्योंकि गलत डिसीजन लेंगे. एंड डोंट मेक प्रॉमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी.
1000 रुपए की लॉटरी निकली है, पहले ही आपने इतने प्रॉमिस कर दिए कि 2000 रुपए का ट्रीट प्रॉमिस कर दिया। सो मैनेजमेंट में आपको सेंसिबल होना है। नेक्स्ट प्लीज। अल्टीमेट मैसेज मेरा कि ना ही सिर्फ आपको नंबर 1 बनना है, बट आपको 2 और 3 को भी उठाना है। जैसे नारायण के बारे में कहा जाता है कि वो बिलियनर बने तो उन्होंने, उनके कई पीएन्स भी मिलियनर बन गए। तो टीम तभी आगे जाएगी जब, और आप तभी और ऊपर जाएंगे अपने सक्सेस लैडर में, जब औरों को भी आप सक्सेसफुल बनाएं, राइट? एंड फाइनली बिफोर आई थैंक सम पीपल, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव। चिंता मत करिए कि अभी आज ही रात को मैंने आज पढ़ के क्या फायदा, आज रात को तो जॉब मिल नहीं रही मेरे को। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। घूम फिर के आपको उसका फायदा मिलेगा, जो ओवर अ पीरियड टाइम आपको पता लगेगा। फाइनली आई हैव टू थैंक सम पीपल एंड दैट इज विथ व्हिच आई विल एंड। ये लोग जो हैं मेरी जिंदगी में, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी वजह से आई हैव बीन एबल टू लर्न मेनी थिंग्स। जो फर्स्ट नाम है, पद्म भूषण अवार्डी हैं, वो स्टिल आज भी मेरे मेंटर हैं। कभी भी मेरे को डिफिकल्टी होती है कुछ मैनेजमेंट में समझने में, कुछ कंफ्यूजन में, आई सीक हिज हेल्प। उसके बाद जो 3 लोग हैं, ये मेरे प्रोफेसर्स थे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एफएमएस आपको पता ही होगा, जिन्होंने मेरे को बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट समझाई। आज भी गिविंग क्रेडिट टू देम, प्रोफेसर चैटर्जी, प्रोफेसर घोष एंड प्रोफेसर अब्दुल अजीज। प्रेम चड्डा साहब इंडियन एयरलाइंस के, जब इंडियन एयरलाइंस अलग होता था, और इंजीनियर्स इंडिया के एचआर हेड रहे, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, और इन्होंने बहुत गाइडेंस दी, स्टोरीज अच्छी बता के कि इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। जोसेफ मनी जो है मेरे पहले बॉस थे एस्कॉट्स में, बहुत ही चीजें सीखने को मिली उनसे। IIM अहमदाबाद के थे, और that is one part, but he was a nice person also, बहुत अच्छा सिखाते थे। Trisha is my daughter. Luckily she has also opted for HR and she works as HR manager in Toronto in Canada. पर उसके साथ भी बहुत चीजें मैं डिस्कस करता हूँ, आइडियाज मिलते हैं, और बहुत लोग हैं, पर ये इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड सेट ऑफ थैंक्स गो टू लॉयड मैनेजमेंट। तैरानी साहब जो हैं आपके चेयरमैन हैं, आप सभी पहचानेंगे इनको। डॉक्टर वंदना सेठी जो हैं वो पूरी ग्रुप डायरेक्टर हैं। सोम साहब जो हैं वो बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर हैं। श्रुति मैम वाज द फैकल्टी पर्सन हु वाज इन टच विथ मी, जो क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल। प्लस इससे पहले भी मैं कई लोगों से मिल चुका हूं जब मैं कैंपस में आया हूं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है लॉयड स्कूल का, लॉयड बिजनेस स्कूल का। और आप, आई एम 100% श्योर आपके ये जो 2 साल होंगे, they will be the most fantastic years of your life abhi tak. So please utilize this time and the resources of your B school to get to your careers. And finally मुझे ये invitation मिला, इसलिए मिला क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया और आपकी ओरिएंटेशन आज शुरू हो रही है। So I am most grateful to you all. I would finish with wishing you the very best in your careers. Keep on doing well, keep on helping others, keep on seeking help, and that is how you will contribute to a great company and a great nation. We are already a great nation, but we can further go ahead agar hum sab log milke kaam kare. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for such a magnificent session. This will